Assalamu alaikum. Hope you all are fine. In the previous lecture, we have discussed the past paper, which is basically 2016 P1 with the variant 2. वेरिएंट 2 का वो पास पेपर था, ठीक है, 2016 का, और उसको हमने जो है पूरे पास पेपर को सॉल्व किया था। प्रीवियस जो है आपके पास वीडियोस जो हैं वो आप देख सकते हैं, जिसके अंदर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं, ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम है यू कैन ईजिली रिजॉल्व इट। और अगर आपको तब भी कोई इश्यूज होते हैं यू कैन डायरेक्टली कमेंट ऑन दैट वीडियो सो दैट आई कैन गिव यू रिप्लाई एंड वी कैन एबल टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम, ठीक है। मूविंग ऑन टूवर्ड्स आवर न्यू लेक्चर, दैट इज़ टुडेज लेक्चर। उसके अंदर बेसिकली जो आज हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है पास्ट पेपर P1 which is of 2012. So this is paper 1 2012 4024 and with the variant 1 2. So coming towards our first question, express 72% as a fraction in its lowest term. That means what you have to do, just simply write. In the previous lecture we have discussed how can we convert percentage into a fraction. What you have to do, just simply divide it by 100. After cancellation you will get 36, 50, 18, 25. This is the most simplest and the lowest fraction, so I can say that 18 upon 25 is my answer. Part B, write down two fractions that are equivalent to 0.4. What you have to do, just simply convert first of all this decimal into the fractional form. How can we convert it? We can simply write it like this. When we shift decimal on right hand side, we have to increase 0 and my answer is 4 by 10. After cancellation, I'll get 2 upon 5. 2 upon 5 is my answer. You have to find out the two fractions which are equivalent to this. What you have to do, just simply multiply this fraction by a number, by a same number in the numerator and in the denominator. Like 2 times 2 is 4 and 5 times 2 is 10. Simply the next number is 3, which is multiply with the numerator and the denominator. 3 times 2 is 6 and 5 times 3 is 15. If we cancel out, we will get the same fraction. ठीक है, तो हमारे पास जो दो आंसर्स आए आपके पास, वो आपके पास इक्विवेलेंट जो हैं, इक्विवेलेंट मीन्स नॉट एग्जैक्ट, ठीक है। आफ्टर कैंसिलेशन वी विल गेट द सेम फ्रैक्शन। तो मेरे पास जो दो फ्रैक्शन आए वो आपके पास क्या है, 4 अपॉन 10 एंड 6 अपॉन 15, ठीक है। आई थिंक इजी क्वेश्चंस थे, इस हवाले से कोई ख़ास क्वेरी आप लोगों की नहीं होगी, और अगर है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। मूविंग ऑन टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2 says the temperature in a freezer is minus 18 degrees. The outside temperature is 24 degrees. Find the difference between the outside temperature and the freezer temperature. What you have to do, just simply to find out the difference, you have to subtract both the temperatures. That is highest temperature minus lowest temperature. Highest temperature is 24 minus lowest temperature, which is minus 18. 24 plus 18, my final answer is 40. 42 degrees centigrade. So my final answer is 42 degree centigrade. Part B, the temperature in a fridge is 22 degrees warmer than the freezer temperature. Warmer means the temperature with the positive is warmer. The temperature with the negative is colder, simple. Find the temperature in the fridge. To find out the temperature in the fridge, we must know the temperature of the freezer. Then the temperature of the freezer is given to you, which is minus 18. Minus 18 is the temperature in the freezer. Warmer means 22. 22 times warmer, what does that mean? You have to add 22 in it. You will get the answer 4. That means the temperature of the fridge is 4 degree centigrade. तो सिंपली आपने करना क्या है कि वार्मर के लिए फाइंड आउट करने के लिए आपने कुछ भी नहीं इसके अंदर करना था। आपने क्या करना था, जो आपके पास ये वैल्यू गिवन थी, तो आपने यहाँ प्लस 22 डिग्री किया, तो आपका जो आंसर आया वो सिंपल 4 आ गया। अगर आपको यहाँ वार्मर की जगह कोल्डर बोला जाता तो आप यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं, माइनस 22 डिग्री करते, तो आपका आंसर और नेगेटिव में चला जाता, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे ये कह रहा है कि गिव मी अ मिनट। चल, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे ये कह रहा है, ऑन द ग्रिड बिलो ड्रॉ क्वाड्रिलेटरल। वी मस्ट नो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मींस एनी डायग्राम विच कंसिस्ट ऑफ 4 कॉर्नर्स। ठीक है, कोई भी ऐसी शेप जो 4 कॉर्नर्स पे मेरे पास बनती है, लाइक रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपीजियम, kite, or any other shape like this, this, and this. These are 4 corners. So कोई भी ऐसी शेप जो मेरे पास 4 कॉर्नर्स पे बनती है वो मेरे पास क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल उसे कहा जाता है। ठीक है, अब आपके पास कह रहा है, ऑन द ग्रिड बिलो ड्रॉ क्वाड्रिलेटर, यू हैव टू ड्रॉ क्वाड्रिलेटर, बट देयर आर 2 कंडीशंस इन इट विद नो रोटेशन सिमेट्री। दैट मीन्स कि जब मैं उसे रोटेट करता हूँ तो मेरी जो सिमेट्री है वो कोई भी सिमेट्री, रोटेशनल सिमेट्री नहीं आनी चाहिए। दैट मीन्स इफ आई रोटेट इट एट 90, 180, 270 और 360, मेरा कोई भी रोटेशनल सिमेट्री नहीं बननी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है, एंड जस्ट वन लाइन ऑफ सिमेट्री, दैट इफ आई वांट टू ड्रॉ अ सिंगल लाइन ऑफ सिमेट्री लाइक ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और डायगोनल सिमेट्री, तो मेरी एक बननी चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि अगर मेरे पास कोई भी ऐसी शेप है, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, तो इसकी तो कोई भी मेरे पास रोटेशनल सिमेट्री नहीं है, लेकिन इसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि अगर मैं इसको एंड जस्ट वन लाइन ऑफ सिमेट्री, अगर मैं इसमें से एक एक्स एक्सिस पे बनाता हूँ, क्या ये मेरे पास लाइन ऑफ सिमेट्री आ रही है? नो। अगर मैं इसको, इसी शेप को वाई एक्सिस पे बनाता हूँ, दिस इज ऑन एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, तो अगर ये एक्स एक्सिस पे बनता है तो क्या रोटेशनल सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री आ रही है? नो। इसी तरीके से अगर मैं इसी शेप को डायगनली बनाता हूँ तो क्या मेरे पास जो है लाइन ऑफ सिमेट्री आ रही है? नो। तो ये कंडीशन मेरे पास प्रूव नहीं होगा। ठीक है, तो आपने एक ऐसी डायग्राम सोचनी है जिसके अंदर रोटेशनल सिमेट्री कोई भी ना हो और एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो। तो मेरे पास इसके अंदर पैरेललोग्राम भी आता है, इसके अंदर रोम्बस भी इसी में शामिल होते हैं। ठीक है, वो सारे क्वाड्रिलेटरल है मेरे पास। तो अगर मैं इन शेप्स को तमाम को देखता हूँ तो मेरे पास एक काइट एक ऐसी शेप है जिसको अगर मैं ड्रॉ करता हूँ लाइक दिस, तो ये मेरी तमाम कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बात आपसे करता हूँ कि काइट हमारे पास ये है, अब इसको हम रोटेट करते हैं, इसको अगर मैं 90 डिग्रीज पे रोटेट करता हूँ तो मेरे पास जो शेप बनेगी वो कुछ इस तरीके से आ जाएगी। ठीक है, तो ये प्रीवियस शेप तो है नहीं, तो ये तो हो नहीं सकता। अगेन अगर मैं रोटेट करता हूँ तो मेरे पास शेप कुछ इस तरीके से आ जाएगी, तो ये भी नहीं है। उसके बाद जब रोटेट करते हैं तो शेप आपकी कुछ इस तरीके से आपके सामने आ जाएगी, ये भी नहीं हो रहा। दैट मीन्स जब मैं इसे 90 पे, 180 पे, 270 पे रोटेट कर रहा हूँ तो आई एम नॉट गेटिंग दैट सिमेट्री, यानी दैट शेप अगेन। तो मैं जब इसे दोबारा 360 पे रोटेट करूँगा देन आई विल गेट दिस शेप अगेन 360 पर, जो मेरे पास 0 पे थी। दैट मीन्स मेरे पास रोटेशनल सिमेट्री इसके अंदर कोई भी मौजूद नहीं है। ठीक है, एक तो कंडीशन पूरी हो गई, सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन आपके पास क्या है, एंड जस्ट वन लाइन ऑफ सिमेट्री। व्हाट डज दैट मीन्स, या तो आप किस पे बना सकते हो, एक्स एक्सिस पे, या आप किस पे बना सकते हो, वाई एक्सिस पे अपनी लाइन ऑफ सिमेट्री, या आप किस पे बना सकते हो, डायगनली बना सकते हो। अगर मैं इसे वाई एक्स एक्सिस पे बनाता हूँ इस तरीके से, तो ये मेरे पास लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्योंकि ऊपर वाली शेप और नीचे वाली शेप आपस में दोनों क्या है, डिफर है साइज में। अगर मैं वाई एक्सिस पे इसे बनाता हूँ लाइक इस तरीके से कुछ, ठीक है, थोड़ा सा ख़राब हो गया, एक्सट्रीमली सॉरी। इसे बनाते हैं इससे, ठीक है, कुछ इस तरीके से अगर शेप बनाते हैं तो हमारे पास जो लाइन ऑफ सिमेट्री आ रही है वो आपके पास एग्जैक्ट बन रही है एक इस पॉइंट के ऊपर, और इस पॉइंट के ऊपर मिसाल के तौर पे पास हो रहा है। तो आप अगर देखो तो दिस साइड इज बेसिकली एग्जैक्टली द मिरर ऑफ दिस साइड। तो ये मेरे पास क्या है, एक लाइन ऑफ सिमेट्री पे मुझे आंसर अपना करेक्ट दे रहा है। और अगर मैं फिगर को अपनी जो है थोड़ा सा आइडेंटिफाई करता हूँ तो डायगनली ये मुझे बिल्कुल प्रोवाइड
नहीं कर रहा। सही है, तो मेरे पास जो शेप आई वो काइट एक ऐसी शेप है जो मुझे क्या है, एग्जैक्ट अपनी जो है दोनों कंडीशंस पे पूरा होते हुए दोनों कंडीशंस को फुलफिल कर रही है। ठीक है, कमिंग टुवर्ड्स पार्ट बी, कंप्लीट दिस डिस्क्रिप्शन। अ पैरेललोग्राम हैज द रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर। एक पैरेललोग्राम अगर मेरे पास होता है तो उसकी रोटेशनल सिमेट्री कितनी होती है। एक चीज आपने याद रखनी है कि हमेशा अगर मेरे पास पैरेललोग्राम कुछ इस तरीके से है, सही है, अच्छा सॉरी, ये तो रेक्टेंगल हो गया। पैरेललोग्राम बेसिकली क्या चीज होती है, it has same features like rectangle but the difference is that the angles are not at 90 degrees। सही है, तो ये पैरेललोग्राम है। अगर इस पैरेललोग्राम को देखता हूँ तो इसकी जो रोटेशनल सिमेट्री है वो मेरे पास 2 नजर आती है। क्यों 2 नजर आती है, क्योंकि अगर मैं इसे 90 पे रोटेट करता हूँ आई विल नॉट गेट द आंसर, बट इफ आई विल रोटेट इट एट 180 आई विल गेट द सेम आंसर। ठीक है, तो मेरे पास अगर ये ए बी सी और डी है, 180 पे ये कन्वर्ट हो जाएगा मेरे पास, और 180 पे जो मुझे ये आंसर देगा वो 180 पे मुझे आंसर मिलेगा 180 पे जो इसका आंसर आएगा वो आपके पास कुछ इस तरीके से, अगर मैं बनाता हूँ शेप तो मेरे पास आंसर आ जाएगा अच्छा। तो आपके पास ये जो शेप आ गई वो आपके पास किस तरीके से आ गई है, सो इफ आई रोटेट इट एट 90 डिग्री आई विल नॉट गेट द आंसर लाइक दिस। अगर मैं इसको 180 पे रोटेट करता हूँ तो मेरा आंसर जो है 180 पे आ जाएगा। अभी इसे ड्रॉ करके आपको समझा देते हैं किस तरीके से ये बनेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ तो मेरे पास शेप कुछ इस तरीके से आ जाएगी एट 90 डिग्रीज, कुछ इस तरीके से शेप आ जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसे दोबारा इसे रोटेट करेंगे, सही है, 90 डिग्री पे इसे रोटेट किया तो ये आपके पास बन गया बी सी और ये बन गया ए डी। अगर इसे 180 पे अगेन रोटेट करेंगे तो ये मेरे पास इस तरीके से आ जाएगी शेप बी सी ए डी 180 डिग्रीज को। तो दैट मीन्स कि ये वाली जो शेप है मुझे कहाँ मिल रही है, एक 180 पे मिल रही है और देन मुझे कहाँ मिल रही है 360 पे। तो मेरी जो रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर जो बना वो पैरेललोग्राम का कितना बन गया, 2 बन गया। ठीक है, एंड द लाइंस ऑफ सिमेट्री की हम बात कर रहे हैं तो लाइंस ऑफ सिमेट्री का मतलब ये है कि मेरे पास या तो एक्स एक्सिस पे होगा, अगर मैं एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करता हूँ तो क्या ये एग्जैक्टली मेरे पास आ रहा है, नहीं आ रहा, सॉरी वाई एक्सिस पे। अगर मैं इसे एक्स एक्सिस पे इस तरीके से ड्रॉ करता हूँ तो क्या ये मुझे एग्जैक्ट अपना आंसर देगा, नहीं दे रहा। इसकी शेप अगर आप देखो तो दिखने में सेम है, बट अगर मैं एग्जैक्टली इसे जो है मिरर करके ऊपर इसके रखता हूँ तो ये वाला कॉर्नर जो है वो मेरे पास इस तरफ कहीं आएगा, वो एग्जैक्टली इस कॉर्नर को टच नहीं करेगा। ठीक है, तो दैट मीन्स मेरे पास ये जो है एक्स एक्सिस की भी सिमेट्री नहीं हो सकती। अगर इसे हम डायगनली थोड़ा सा देखते हैं तो क्या ये डायगनली पे मेरे पास आंसर मुझे देगा, नहीं। ये मैं डायगनल अगर ड्रॉ थोड़ा सा करता हूँ तो ये मुझे डायगनल पे भी आंसर नहीं देगा, क्योंकि वजह ये है कि मेरे पास जो है एंगल 90 डिग्रीज पर नहीं है, एंगल डिफरेंट है, तो ये कॉर्नर इस कॉर्नर को एग्जैक्टली मीट नहीं करेगा। सही, तो मेरे पास यहाँ पे जो लाइन ऑफ सिमेट्री आ गई वो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गई, 0। क्लियर? Moving towards next question, which is question number 4. There is question number 4. It is over here. ठीक है, अब आपके पास इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में आपसे ये कहा जा रहा है बैग कंटेन्स रेड एंड ब्लू काउंटर्स इन द रेशियो 3:8। दैट मीन्स आप रेशियो में लिख लेते हैं इसे, रेड इज टू ब्लू का जो काउंटर है आपके पास वो क्या है, 3:8 का। ठीक है, देयर आर 24 ब्लू काउंटर्स इन द बैग। उन्होंने ब्लू की जो आपको क्वांटिटी है वो क्या बता दी है, 24। टोटल क्वांटिटी आपको नहीं पता, दैट मीन्स यू हैव टू अज्यूम इट x एंड यू हैव टू फाइंड आउट द काउंटर्स रेड, हाउ मेनी काउंटर्स आर देयर। तो आपको सबसे पहले जो है रेड फाइंड आउट करने के लिए यू मस्ट नो दैट द रेशियो ऑफ द रेड डिवाइडेड बाय द टोटल, दैट इज 8 + 3 विच इज इक्वल टू 11,
multiply the total amount of the counters which are unknown. That means you have to find out the value of x. किस तरीके से निकलेगी? अगर मुझे ब्लू पता है, सेम फॉर्मूले में रखता हूँ, तो ब्लू की क्या हो गई? ब्लू के लिए मुझे क्या हो गया? 8/11 of x, but we know the value of blue which is 24. So इसे अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरा जो x का आंसर आएगा वो आ जाएगा 33. That means the total counters in the bag are 33. यहाँ पे हम इसे सपोज कर वैल्यू को उठा के सब्सटीट्यूट करते हैं x की जगह पे 33. If I solve it 11 and 11 3 times, 3 into 3 will give me 9. So my answer for red is 9. So there are 9 red counters in a bag. ठीक है. Part B. Amy and Ben share $360. That means total amount is given, that is $360 with the ratio. The ratio of Amy is to Ben is 3:2. What they ask you in the question, you have to find out the Ben's share. That means the value of Ben आपने निकालनी है. कैसे निकलेगी? प्रीवियस पार्ट की तरह ही आपने Ben का जो शेयर है वो आपने ऊपर रखा, डिवाइडेड बाय टोटल शेयर विच इज 5 into 360. इसको सॉल्व करते हैं. 5 times 1 5, 5 sevens 2, 5 twos, and then my answer is 144. That means $144 is the share of ban. Clear? कोई इशू, कोई प्रॉब्लम, कोई मसला? ठीक है. Moving on to the next question. Question number 5. Question number 5 is basically same question which is in paper 1 2016 variant 2, that is 4024 is 212. तो आपने जो है ये कर लेना है. ठीक है. आप जो है प्रीवियस वीडियो आप देखेंगे जिसके अंदर हमने जो है क्वेश्चन की सॉल्विंग की हुई है. आई थिंक इट इज़ इन पार्ट 2. ठीक है. जो 2016 जो हमने सॉल्व किया था P1, उसका जो पार्ट 2 है हमारे पास, उसके अंदर हमारे पास जो है ये सेम क्वेश्चन मौजूद है. आप उसे गो थ्रू करेंगे, यू विल डायरेक्टली गेट द आंसर एंड यू विल डायरेक्टली नो हाउ कैन वी सॉल्व by using the technique. सही है. किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं. Without wasting our time, moving on towards the next question, which is question number 6. In question number 6, what you have to do, just simply they asked you a circle of a diameter 6 centimeter. That means if I want to find out the radius, the formula for radius is diameter divided by 2, that is 6 divided by 2. My answer is 3 centimeter. And the square of side, the side of a square, that is length, which is equal to 8 centimeter. Find an expression in a minus b pi for the shaded area. तो शेडेड एरिया निकालने के लिए सबसे पहले आसान तरीका क्या है कि अगर मुझे किसी तरीके से स्क्वायर का एरिया पता चल जाए, उसमें से अगर मैं सर्कल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दूं, आई विल गेट द आंसर ऑफ माय शेडेड एरिया. तो फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ स्क्वायर is length square, that means 8 square, which is equals to 64. Similarly, area of circle is pi r square. Done. So the value of pi is simple, we can write as it is. और r की जो वैल्यू हमारे पास है वो क्या है? 3. तो 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा? 9. तो मेरा जो आंसर आ गया वो 9 पाई आ गया. ठीक है. इफ आई सब्ट्रैक्ट इट, सो जो मेरा आंसर बनेगा वो मेरा क्या बन जाएगा? इफ आई सब्ट्रैक्ट द वैल्यू विच इज एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, तो मेरा जो आंसर आया वो क्या आ गया? 64 माइनस 9 पाई. ठीक है. तो मैं आप मेरा जो आंसर आया फाइनल वो क्या आ गया? 64 माइनस 9 पाई. ये मेरा आंसर है. क्लियर? आप क्वेश्चंस को नोट डाउन करो, देखो कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में तो मुझसे भी डिस्कस कर लो.
ठीक है, आई थिंक कोई क्वेश्चन? ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is question number 7. ये रहा आपके पास क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे. क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिंपली मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ द बेसिकली सिलेबस. You have to find out the value of x which is the unknown in this given question. X plus 2 equals to this 3 is divided, which is basically in the denominator, and when you will shift it on the right hand side, it will multiply by the number which is 2. So x plus 2 equals to, x plus 2 equals to 6, and when 2 shifts on the right hand side, you will get your answer which is 4. So my answer is 4. Part B, write down the integers that satisfy inequality. So in this question, how can you solve this question? Simple. -1, 4y plus 3 less than 11. अब इसे किस तरीके से कर सकते हैं? आपने क्या करना है सिंपल इस क्वेश्चन के अंदर, पहला काम वो ये कि जो आपके पास कांस्टेंट है, आप इसको, जब मैं अगर इसे चाहे राइट हैंड साइड पे या लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करता हूँ, ये सब्ट्रैक्ट होगा. दैट मीन्स इट विल बिकम -1 -3 लेस देन इक्वल्स टू y, 4y लेस देन 11 -3. So -1 -3 will give me -4 less than equals to 4y less than 8. अब ये जो 4 है मेरे पास, अगर मैं इसे राइट हैंड साइड पे या लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करता हूँ, इट विल डिवाइड. सो आफ्टर डिवीजन वी विल गेट द आंसर -1 लेस देन इक्वल्स टू y लेस देन इक्वल्स टू 2. तो बेसिकली मेरी जो y की वैल्यू है वो किन के दरमियान लाई कर रही है? -1 से लेके 2 के दरमियान मेरी y की वैल्यू लाई कर रही है. अब उन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा है? राइट डाउन ऑल द इंटीजर्स दैट सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी. सो अब इसको किस तरीके से करते हैं? चलें जी, तो अब हमारे पास जो हमने एक चीज़ इसके अंदर देखी, y की वैल्यू जो हमारे पास है वो -1 से 2 तक है, ठीक है. लेकिन जो हमारे पास इनइक्वालिटी है वो कुछ चीज़ें डिफाइन करती है. इनइक्वालिटी क्या कह रहा है आपके पास कि इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम -1 0 1 but it is ending less than 2. दैट मीन्स कि आपने 2 से कम पे एंड हो जाना है. उन्होंने आपसे क्या मांगा है? यू हैव टू फाइंड आउट द इंटीजर. दैट मीन्स डेसिमल वैल्यूज आर नॉट अलाउड. तो जो नंबर्स आपके पास इन इक्वालिटीज के दरमियान यानी y की वैल्यूज के अंदर आए वो आपके पास कौन कौन से बन गए? -1 0 एंड 1. दीज आर योर आंसर. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 8. Question number 8 says that the length of a rectangular rug is given as 0.9 meters. अब ये जो वैल्यू आपके पास है इन मीटर्स गिवन है. सबसे पहले तो आपने एक चीज़ ये नोट डाउन कर ली, 0.9 मीटर्स है लेंथ आपके पास गिवन है. इसे यहाँ लिख लेते हैं 0.9 मीटर्स, ठीक है. करेक्ट टू द नियरेस्ट 10 सेंटीमीटर्स. अब ये ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे हमने प्रीवियस जो है क्लास के अंदर डिस्कस किया था, जब हमारे पास 10 वैल्यू गिवन थी और हमने क्या किया था? उसे डिवाइडेड बाय 2. लेकिन इसमें जो कन्फ्यूजन है वो ये है कि एक है हमारे पास मीटर में, दूसरा सेंटीमीटर. दैट मीन्स यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू सेंटीमीटर्स. अगर 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर है मेरे पास, तो मेरे पास 10 जो आपके पास सेंटीमीटर्स है वो आपके पास 10/100 हो जाएगा. इसे सॉल्व करेंगे तो आई विल गेट माई आंसर 0.1 मीटर्स. लेकिन ये जो मेरा आंसर आया है 0.1 मीटर, ये आ तो गया, लेकिन इसको हम करते हैं क्या? बेसिकली डिवाइडेड बाय 2 करते हैं. जब मैं इसे डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? 0.05. So basically to find out the lower bound, what you have to do, just simply subtract 0.05 from the length which is 0.9. तो अगर मैं इसको इसमें से माइनस करता हूँ तो मेरा जो आंसर आ गया वो क्या आ गया?
0.85. So my lower bound for the length is 0.85. ठीक है. पार्ट बी, फाइंड द लोअर बाउंड इन द मीटर्स ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ रग. तो आपके पास अगर पेरीमीटर रेक्टेंगुलर है, दैट मीन्स सॉरी डायग्राम रेक्टेंगुलर है, दैट मीन्स आपके पास पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ. अब क्वेश्चन ये है कि आपके पास जो वैल्यूज थी, इनको सबसे पहले आपने क्या करना है, इनका लोअर बाउंड फाइंड आउट करना है. और लोअर बाउंड हमने लेंथ का तो निकाल लिया, जो हमारे पास क्या आया था बेसिकली 0.85 आया था. सही है. अब मुझे किसका निकालना है, ब्रेथ यानी विड्थ का निकालना है. विड्थ का किस तरीके से निकलेगा, मेरे पास वही जो वैल्यू है 0.6, उसमें से माइनस कर दूंगा क्या 0.05 को. तो मेरा जो ब्रेथ का आंसर आया वो क्या आ गया, 0.55. ये मेरा ब्रेथ का आंसर आ गया. अब जब ये मेरे लोअर बाउंड दोनों के निकल के आ गया, आपने एट द एंड क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को उठा के पेरीमीटर के फॉर्मूले में रख देना है. इसको अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ, आई विल गेट माई आंसर 0.85 प्लस 0.55. तो मेरा जो आंसर आया निकल के 1.4, and after multiplication I will get my answer 2.8. तो ये मेरा जो फाइनल आंसर आ गया लोअर बाउंड के हिसाब से, वो आपके पास क्या निकल के आया, 2.8. अब क्वेश्चन में इन्होंने लोअर बाउंड पूछा था, जी बिल्कुल लोअर बाउंड पूछा था. इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या पूछा था, अपर बाउंड पूछा था. ठीक है, कोई मसला नहीं है. इस क्वेश्चन के अंदर हमने थोड़ा सा मिसरीड किया क्वेश्चन को, मुझे लगा लोअर बाउंड, तो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया इसके अंदर से. लेकिन उन्होंने क्या पूछा आपसे, अपर बाउंड, सो यू हैव टू ऐड अप. इसको अगर मैं ऐड करता हूँ तो मेरे पास जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 0.9 प्लस 0.05. तो मेरा आंसर आ गया 0.95. थोड़ा सा ये चलें जी. अपर बाउंड के लिए हम क्या कर रहे होते हैं, जो वैल्यू होती है उसको हम ऐड कर रहे होते हैं अपर बाउंड के लिए, और लोअर बाउंड के लिए हम क्या कर रहे होते हैं, जो भी वैल्यू होती है उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं. तो मेरा जो आंसर आ गया 0.95, दिस इज 0.85. सो मेरा जो आंसर आ गया ये आपके सामने क्लियर. सो आज की क्लास जो है हम यहाँ पे एंड करते हैं. ठीक है, जो क्वेरीज आपको हैं, कोई प्रॉब्लम है, कोई भी आपको इश्यूज हैं, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी. ठीक है, इस एक्सप्लेनेशन के बाद भी यू कैन डायरेक्टली कमेंट इन द वीडियो. ठीक है, और फिर जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, जो भी क्वेरीज होंगी, उन्हें हम जो है हाथ के हाथ वहीं रिजॉल्व कर देंगे. ठीक है, टेक केयर, थैंक यू फॉर योर टाइम, अल्लाह हाफिज़.